Yes, so good afternoon, guys. Welcome to TradeClue weekly webinar. So basically, these webinars are conducted for the new demo IDs as well as the new clients which are been added to the TradeClue terminal, and plus our student fraternity which is there of Trading Campus. So we'll be conducting these webinars on weekly basis. तो ये webinars जो conduct होने वाले हैं ये weekly web basis पे होने वाले हैं. जो भी cases basically which we will be getting during the week, मतलब जो भी अलर्ट्स आए हैं या जो भी स्क्रीनशॉट्स या जो भी पोजिशनल अलर्ट्स या लाइव मार्केट अलर्ट्स जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे. प्लस वी विल बी डिस्कसिंग दी एग्जीक्यूशन पैटर्न्स, मतलब हाउ टू ट्रेड दी स्टॉक्स टू फोकस स्टॉक्स. तो जो स्टॉक्स टू फोकस में जो हम स्टॉक्स दिए जाते हैं तो वो कैसे ट्रेड कर सके, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या पैटर्न है ये सेशंस में. एंड गोइंग हेड, सो क्योंकि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी स्टॉक्स पे फोकस हो गए या लाइव मार्केट के अलर्ट्स. लाइव मार्केट अलर्ट्स, नो डाउट वी आर गिविंग द guidance, trade guidance to the clients as well as the in the premium group. But for stocks to focus, how to trade them or how to trade as per these levels which you are seeing in the charts, we'll discuss some simple concepts, some simple strategies, so that will be more clearer to you guys. So just to give you a quick walkthrough of the terminal, once I log in, so जिनके पास भी login ID है तो बेसिकली उनको ये पोर्टल दिखेगा. तो ये एक वेबसाइट है. सो इट इज अ वेबसाइट, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर वेर यू हैव टू इंस्टॉल इट एंड ऑल. इट इज अ वेब लॉगिन. आप लॉगिन लिंक से ये कर सकते हो. एंड आफ्टर एंटरिंग योर दिस थिंग, योर ईमेल आईडी, पासवर्ड, आप यू कैन एंटर इनटू द टर्मिनल इटसेल्फ. So as you can see, the left hand side is my charts. So charts basically live हो गए. तो live market पे charts चले गए. Spot charts है, they are not future charts. Future charts will be embedded on only on index Nifty and Bank Nifty going ahead. Mostly in this quarter, the update will come of Nifty, Bank Nifty future charts, and plus more and more updates are in line for this quarter itself. So जो भी है futures charts ये सब वही update में आ जाएगा. तो फिलहाल तो आपको stocks के और Nifty spot and Bank Nifty spots are available. The stocks which will be basically जो भी stocks इसमें है सिर्फ आपको Nifty 50 और FNO के stocks. FNO has been जो stocks which are in the FNO segment, that is those 200 stocks or I guess 205 stocks are there in the FNO segment जिसपे futures and options trade होते हैं. तो उनके आपको स्टॉक्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो. सो इफ आई वांट टू सर्च एनी स्टॉक्स ऑन माय ट्रेडक्लू पैनल, तो आई कैन जस्ट सर्च ओवर हियर एनी ऑफ द स्टॉक्स. लाइक इफ आई वांट टू सर्च रिलायंस, तो जस्ट मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप करूंगा और यू कैन सर्च दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो ये बेसिक एक चार्टिंग वाला पार्ट है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है. एंड प्लस इफ आई वांट टू ऐड एनी इंडिकेटर्स, तो अगर मुझे कोई इंडिकेटर्स बेस पे मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो यू कैन सिमिलरली ऐड योर इंडिकेटर. whatever indicator, suppose you are trading on RSI, so you can directly type your relative strength index RSI, and then same ways you can get your indicator plotted over here. So same for which the sound is not there. I guess sound is clear for others. Please confirm whether my sound is clear or not, because some of the IDs I guess they're facing. Yeah, it is clear. So Mr. I don't know what's your name. AM Sheikh, please check your this thing. I guess you had muted or so. Just check my ID voice if it's muted at your end also, and see, or connect with your headphones. That would be better. So basically coming on to the session. So आपको अगर कोई इंडिकेटर ऐड करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड ऐड योर इंडिकेटर दोज, बिकॉज देर आर सम ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग ऑन इंडिकेटर्स. जो मेजरली यूज्ड इंडिकेटर्स है दे आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल इटसेल्फ. तो आप वो इंडिकेटर्स ट्रेड कर सकते हो. प्लस यू कैन सी ऑन द चार्ट देर आर सर्टेन लेवल्स विच आर मार्क. तो आपको ये लेवल्स देख के माइट भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस फील होते होंगे कि अरे क्या है ये ट्रेड क्लू, बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग दिस, या व्हाट आर दिस लेवल्स. सो यू कैन कीप इट सिंपल और यू कैन कीप इट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स योर बेसिकली. सी ये लेवल्स जो है ये एक डेटा पॉइंट से हमने डिराइव किए हुए लेवल से, फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम फिबोनाची या पिवट्स. नॉर्मल पिवट्स है नहीं ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम गेट कंफ्यूज किए नॉर्मल पिवट लेवल्स है. तो दीज आर नॉट पिवट लेवल्स, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेजर इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल और दिस थिंग फ्रॉम OI डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स. सो बेसिकली एक अमेलगमेशन ऑफ लेवल्स है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे आज का बेसिकली इंडिकेटर, बेसिकली निफ्टी या बैंक निफ्टी का कहाँ पे डेली सपोर्ट है या डेली रेजिस्टेंस है या मेजर लेवल्स कहाँ पे है. तो ये हम बेसिकली एक फॉलोअप रखेंगे. तो अगर मुझे लेवल्स के बारे में जानना है तो बेसिकली DR इज डेली रेजिस्टेंस,
DS इज डेली सपोर्ट। तो अगर डेली सपोर्ट के नीचे अगर कोई स्टॉक सस्टेन करता है एंड देन इट गिव्स मी अ ब्रेकडाउन पैटर्न, तो हमेशा आपको एक सेलिंग ट्रेड या बाइंग ट्रेड। तो विल कम बैक टू दी एग्जीक्यूशन पार्ट एज वेल, कि एक सिंपल स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे ये लेवल्स के ऊपर। तो सेम वेज आपका डेली रेजिस्टेंस हो गया या डेली सपोर्ट हो गया या मंथली रेजिस्टेंस एंड मंथली सपोर्ट। सो MS एंड MR आर मंथली रेजिस्टेंस एंड मंथली सपोर्ट। वीकली रेजिस्टेंस वीकली सपोर्ट आर the weeks ka resistance and support points. Similar ways max put. So whenever I am trading index, so we'll also come how to trade index or how to judge एन इंडेक्स का मूव। मतलब एक इंडेक्स का मूव कैसे हम जज कर सकते हैं कि कहाँ पे जा सकता है, अपसाइड है पॉसिबिलिटी या डाउन साइड है, अलोंग विथ आर सम पैटर्न्स एज वेल। तो बेसिक एजेंडा यही है। तो एक वॉक थ्रू हो गया आपका इसका। ये तो एक ड्राइंग टूल है साइड में, अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन हो या कुछ चार्ट्स पे आपको ड्रॉ करना हो तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड यूज दिस थिंग, द चार्टिंग टूल का ड्राइंग टूल यहाँ पे, एंड यू कैन मार्क मेक योर मार्किंग्स ऑन द चार्ट itself. On the right hand side I have this dashboard wherein major of the features are available of TradeClue. No, TradeClue has many features, as in अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो we have these courses as well where you are taught regarding this, the intraday course basically. And plus आपको अगर एक वॉक थ्रू दिया जाए तो आपको अगर इसमें डेट में से एक बेसिकली दिस एन इज निफ्टी चार्ट। तो एक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। अगर निफ्टी का मुझे स्पॉट चार्ट लाइव मार्केट में देखना है तो दिस इज द निफ्टी चार्ट। दिस आर बैंक निफ्टी चार्ट, मतलब BN इज द बैंक निफ्टी चार्ट। प्लस वॉल्यूम बजर, बेसिकली एक वॉल्यूम बजर हमने कंसेप्ट डिराइव किया है कि जहाँ पे जो भी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है फॉर दैट पर्टिकुलर डे, इन द फर्स्ट 5 मिनट और इन द फर्स्ट 15 मिनट और इन द फर्स्ट 60 मिनट। सो मेजरली इफ यू आर डूइंग इंट्राडे तो आपको एक प्रोसेस रख सकते हैं हम कि एक प्री मार्केट से हमने स्टॉक्स निकाले, फ्रॉम प्री मार्केट स्टॉक्स, सो विच स्टॉक्स आर द हाईएस्ट इन द प्री मार्केट जंक्चर। तो वो बेसिकली जैसे अभी आज टाइटन था तो प्लस टाइटन, इफ दैट टाइटन इज इन प्री मार्केट, प्लस इफ टाइटन हैज गुड वॉल्यूम एंड प्लस दैट टाइटन हैज गुड 15 मिनट वॉल्यूम, देन देर आर हाई चांसेस और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टॉक टू परफॉर्म फॉर द डे। क्योंकि अगर स्टॉक में वॉल्यूम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दैट स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर दैट डे। तो उसमें हम, या अगर नहीं भी चलते तो अगर लाइक सम डेज आर देयर कि अगर वॉल्यूम बजर के स्टॉक्स है बट नहीं चले एज इन कि साइडवेज, इट हैज रिमेन्ड साइडवेज फॉर कपल ऑफ डेज, देन आई विल बी प्लानिंग टू ट्रैक दो स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। अगर आप वो भी ट्रैक कर सकते हो, लाइक आई ट्रेडेड वीक बैक की एक अपोलो टायर्स हमारे इसमें आया था, वॉल्यूम बजर में आया था, बट इट रिमेन्ड साइडवेज फॉर कपल ऑफ वीक्स। तो इट रिमेन्ड साइडवेज, तो साइडवेज एज इन की एक रेंज बाउंड सिनेरियो में था। अगर मैं उसका डेली चार्ट भी चेक करूंगा तो डेली नहीं, 15 मिनट, सो व्हेन आई एम एनालाइजिंग इट्स मोर देन इनफ टू सी द 15 मिनट्स चार्ट। तो 15 मिनट्स चार्ट पे इट वाज ऑन साइडवेज जोन, और एक ये वॉल्यूम बजर में भी आया था। अगर इफ आई पुट वॉल्यूम इंडिकेटर इन दैट स्ट्रक्चर, तो देर वर वॉल्यूम स्पाइक्स, गुड वॉल्यूम स्पाइक्स विच वर कमिंग ऑन दी दिस थिंग। तो ये मुझे वॉल्यूम बजर स्कैनर में है, बट स्टिल इट रिमेन्ड साइडवेज फॉर द डे। बट द नेक्स्ट डे व्हेन इट ओपन ऑल ओवर ऑल दी लेवल्स एंड एक वाई पैटर्न या जो भी बेस वायलेशन जिसे हम बोलते हैं काइंड ऑफ स्ट्रक्चर करके ये ऊपर चला गया। सो दीज स्टॉक्स हैव हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज वॉल्यूम हैज बीन प्रेजेंट इन दैट स्टॉक, और वॉल्यूम भी ऐसा होता है कि बेसिकली इट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 डेज। तो अगर लास्ट 10 दिन या लास्ट 5 दिन का भी हाईएस्ट है वॉल्यूम, तो 10 means that the volume is highest in last 10 days, 5 means highest in volume is highest in last 5 days, तो so on। so मुझे बस मैक्सिमम जिसमें है वो मैं प्रीफर करूंगा जो भी स्टॉक्स है, तो उसमें आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड माई एग्जीक्यूशन पैटर्न्स। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो इट्स नॉट लाइक प्योरली अगर कोई लेवल क्रॉस होता है कि जैसे अगर इफ आई एम ट्रेडिंग एंड आई एम थिंकिंग कि अगर DR क्रॉस होता है डेली रेजिस्टेंस, देन आई एम गोइंग टू ट्रेड, सो दैट इज नॉट द वे टू ट्रेड। सो DR अगर क्रॉस होता है तो यू नीड टू हैव योर एग्जीक्यूशन पैटर्न रेडी भी। तो एग्जीक्यूशन पैटर्न्स और ये सब आपके पास इन लाइन होना चाहिए टू गेट थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो कमिंग बैक टू द पोर्टल, आप यहाँ पे वॉल्यूम बजर है, प्लस वी हैव अ पोजिशनल ट्रैकर एज वेल। सो गोइंग अहेड we have started actually the position alert. So currently what we are offering to our clients is the live market alerts. तो एक है कि live market में alerts आपको आते हैं, तो जिसका हम basically guidance है, trade guidance as in entry हो गया या stop loss हो गया, no way, no doubt the
alert comes on the terminal, but plus we are giving this entry and stop loss का guidance over the WhatsApp as well. So एक WhatsApp में आपका separate group है जिसका नाम TradeClue Premium Group हो, या if you are a demo ID client, so demo IDs के लिए हमने एक demo group भी बनाया हुआ है, तो same alerts will be given to the demo clients as well, but for a particular time period, जैसे 2 weeks है या आपका जैसे ही demo का validity है उतना. तो it will be kind of follow up. So currently what we are offering is live market alerts. एक हो गए stocks to focus. So these stocks to focus, how to trade them, we will come back to that as well. एक stocks to focus हो गया जो basically एक breakout structures होते हैं stocks पे, which are highly probable breakout stocks जहाँ पे आप breakout के लिए ही track कर रहे हो. And the next thing is what we started recently, that is from this month itself, for the positional alerts. So positional alerts भी दिए जाएंगे आपको ग्रुप में. तो लाइकवाइज अगर उसके भी गाइडेंस बेसिकली ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज ऑन द टर्मिनल, इट विल फ्लैश बिकॉज सम अपग्रेडेशंस विल बी डन ऑन द टर्मिनल इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ. तो आप उस पे भी ट्रैक रख सकते हो. तो फिलहाल तो इस पे तो हमारा, और प्लस वी आर कमिंग अप विद द इंडेक्स अलर्ट्स व्हिच आर इनटू द फॉरवर्ड टेस्टिंग फेज. सो करंटली इट इज नॉट देयर, बट गोइंग अहेड वी आर प्लानिंग इट बाय दिस क्वार्टर और मैक्सिमम बाय नेक्स्ट क्वार्टर. बट ये बेसिकली आने ही वाले इंडेक्स अलर्ट्स बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. बस बैक टेस्ट तो हो गया, बट वॉट एवर अलर्ट्स और वॉट एवर स्ट्रेटेजीज आर कोडेड ऑन द सिस्टम, वी हैव एक्चुअली फॉरवर्ड टेस्टेड एज वेल. तो अगर बैक टेस्ट भी है तो बैक टेस्ट में तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही आते हैं, बट अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो समथिंग इज नॉट करेक्ट विद दिस स्ट्रेटेजी. सो वी नीड टू एडजस्ट एवरीथिंग एंड वी नीड टू प्लान इट लाइकवाइज. तो कमिंग बैक टू द टर्मिनल, अगर आप पोजिशनल ट्रैकर, अगर आप बेसिकली इफ यू आर एन ऑफिस गोअर या आपको टाइम नहीं मिलता है स्क्रीन टाइम, तो वो बेसिकली उनके लिए फोकस में होगा मैक्सिमम की जिनको स्क्रीन टाइम नहीं है, जो लाइव मार्केट पे दे आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. सो दे कैन ट्रैक दिस पोजिशनल अलर्ट्स. तो पोजिशनल तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, मोबाइल से भी आप ट्रेड कर सकते हो, इट वोंट मैटर मच. और लाइव मार्केट्स बेसिकली आर टू दोज की जिनको दे आर एक्टिवली इनटू द मार्केट्स, दे आर ऑन द स्क्रीन, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है बेसिकली, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आर द सेटअप्स और ये सब. तो आप डायरेक्टली यू कैन ट्रैक देम ऑन व्हाट्सएप, और डायरेक्टली इफ यू नो हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स और हाउ टेक्निकल टर्म्स वर्क, तो यू कैन डायरेक्टली ट्रेड ऑन देम एज वेल फ्रॉम द टर्मिनल इटसेल्फ. प्लस जो इंडेक्स अलर्ट्स है, नो डाउट दे आर ऑल्सो फॉर दोज हु आर एक्टिवली ट्रेडिंग इनटू द मार्केट्स. नो डाउट इफ यू आर नॉट देयर ऑन द स्क्रीन तो इंडेक्स अलर्ट माइट फायर बैक, क्योंकि इंडेक्स से आपका रिस्क ज्यादा होगा और उसके हिसाब से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा. और स्टॉक्स टू फोकस भी ऑल्सो यू कैन ट्रेड दोज हु आर लाइक ऑफिस गोअर्स, जिनको टाइम नहीं है, in the first 1 hour itself you can trade them. So that will be also uh, uh, possible for them as well. So stocks to focus normal breakout है 1 hour में maximum. Most of the stocks आपको 1 hour में ही starting में breakout देंगे. 80% of the stocks. Later half में mostly after 1:30 or 1 p.m. You will be getting the breakout basically. तो विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस. सो लेवल्स तो आपको क्लियर है. अगर लेवल्स मुझे हाइड करने हैं चार्ट से, सो देयर आर सम क्लाइंट्स हु से दैट कि लेवल्स नहीं दिख रहे आजकल, तो बेसिकली आप अगर यहाँ से लेवल्स अपीयर आपको करना है, आपको विजिबल रखना है, तो यू कैन कीप इट. इफ यू वांट टू मेक द चार्ट लेवल फ्री, तो आप ये लेवल्स क्लियर आउट कर सकते हैं. तो विल जस्ट अंडरस्टैंड फॉर दी दिस थिंग, विल अंडरस्टैंड हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट और हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन इंडेक्स. या इंडेक्स का भी सिंपल एक लॉजिक है कि आपको कैसे आप ट्रैक रख सकते हो इंडेक्स पे भी. तो एक हम बेसिकली एक BSZ करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड बायर सेलर जोन. तो ये बेसिकली ये है कि आपको बेसिकली इफ आई एम सीइंग एनी चार्ट, कि आप कोई भी चार्ट देख लो, तो इस पे रेड बॉक्सेस और ग्रीन बॉक्सेस आपको शो कर रहे हैं बेसिकली, राइट. सो दीज आर रेड बॉक्सेस. तो अगर आप सिंपल ट्रेडर हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक की है. कैंडल स्टिक तो अभी देखो इतना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं. रेड कैंडल स्टिक एक बेरिश कैंडल है, ग्रीन एक बुलिश कैंडल है. प्लस व्हेन आई एम सीइंग, मैंने सब लेवल्स डिसअपियर कर दे, तो बस आई एम सीइंग द ग्रीन डॉट्स और द डॉट्स व्हिच आर देयर ऑन द चार्ट्स और द दिस थिंग, द बॉक्सेस. तो अभी इस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे बेसिकली. तो जब भी कोई भी स्टॉक, सो रेड बॉक्सेस बेसिकली स्टैंड फॉर सेलिंग जोन, मतलब एक बड़ा सेलर है, एक मेजर सेलिंग उधर जोन खड़ा है. एंड प्लस यहाँ पे एक बेसिकली एक बायर है, तो बायर जोन है, एक सेलर जोन है. इस पे अगर कोई बैंड है, तो बैंड है मतलब वो एक वॉल्यूम बजर वाला स्टॉक है. तो इफ वॉल्यूम बजर इज देयर, सो वॉल्यूम बजर मतलब क्या, कि उस स्टॉक में लास्ट वीक में या लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में वहां पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है. तो जैसे अभी एक एक्सिस बैंक है, सो एक्सिस बैंक हैज अ बॉक्स एज वेल एज इट हैज अ बैंड.
तो बैंड भी है और बॉक्स भी है, मतलब एक्सिस बैंक हैज मोर प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, या वो तो स्ट्रैटेजी हम देख लेंगे कि कैसे हम कौन से स्टॉक्स वी कैन गो फॉर रिवर्सल और कौन से स्टॉक्स वी कैन गो फॉर ब्रेकआउट। तो एक एजेंडा हो गया इस पे। तो अगर मुझे ट्रेड करना ही है तो स्टॉक्स टू फोकस हम देते हैं कि यहाँ पे जैसे स्टॉक्स टू फोकस, तो कुछ हमारे पास एक तो दो पार्ट है ट्रेड क्लू में, वी हैव लाइव मार्केट एंड वी हैव आफ्टर मार्केट। नाउ लाइव मार्केट बेसिकली वी हैव सम स्ट्रेटेजीज विच आर कोडेड ऑन टू द सिस्टम, और उसके बेसिस पे जब भी कोई स्टॉक जो वो स्ट्रेटेजी सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक जो कोड दिया गया है वो सेटिस्फाई करेगा, तो उसके बेसिस पे वो अलर्ट जनरेट होगा। तो इफ आई वांट टू सी द लाइव मार्केट अलर्ट्स, तो लाइव मार्केट अलर्ट्स में लाइव मार्केट पे क्लिक करूंगा, एक क्वेरी, देन आई सिलेक्ट द प्रो अलर्ट। सो प्रो अलर्ट्स विल बी मॉर्निंग बजर, या ये सब स्ट्रेटेजी के नेम्स है, रिवर्सल हो गया या ब्रेकआउट हो गया, एंड सेम वेज आई विल सिलेक्ट जेन प्रो अलर्ट। ओके, और यहाँ पे अभी देखो आज कोई अलर्ट आया नहीं है, वाई? क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन, सो द स्ट्रक्चर्स वर नॉट दैट ग्रेट टू ट्रेड ऑन इंट्राडे। मैनुअल ट्रेड ऑब्वियसली कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस करके हम कर सकते हैं, बट जो एक प्रोसेस दिया गया है सिस्टम को, तो उस सिस्टम में वो बैठता नहीं है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक्सट्रीम डाउन मूव आ गया था मॉर्निंग में। सो विल चेक, सो इफ आई वांट टू चेक एनी ऑफ द अलर्ट्स, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन लाइव मार्केट क्वेरी। और ये अभी जनरल अलर्ट्स, बेसिकली सी प्रो अलर्ट्स आर द अलर्ट्स व्हिच वी आर गिविंग टू द क्लाइंट्स ऑन दी व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग। और जो जनरल अलर्ट्स है, ऑब्वियसली देयर विल बी मेनी जनरल अलर्ट्स, तो जहाँ पे जनरल अलर्ट 100 आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रो अलर्ट्स हार्डली 2 और 3 या एक आएगा, इस हिसाब का बेसिकली रेशियो। तो जनरल अलर्ट्स बेसिकली दे विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर दोज हु आर ट्रेडिंग एज पर, जैसे अगर मैं आरएसआई डाइवर्जेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी, व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस? सो आरएसआई डाइवर्जेंस बेसिकली कि आरएसआई मैंने अप्लाई किया, जहाँ पे आरएसआई इज मेकिंग अ बेसिकली आरएसआई स्ट्रेंथनिंग, और द सेम वेज आपको तो आरएसआई के वीडियोस भी मिल जाएंगे कहाँ पे भी, बट आरएसआई स्ट्रेंथनिंग एंड प्राइस इज फॉलिंग, सो दैट इज काइंड ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस। तो अगर मुझे यही चीज इस पे चेक करना है कि चार्ट्स पे, तो अलर्ट पे, तो आरएसआई डाइवर्जेंस का मैंने सिलेक्ट किया, एंड सेम बेस जेन प्रो अलर्ट करके रिजल्ट्स में चेक करूंगा। तो जो भी स्टॉक्स में आरएसआई डाइवर्जेंस है, बुलिश हो या बेरिश हो, विथ टाइमिंग को कौन से टाइम पे जनरेट हुआ है, तो 10 बजे हिंदाल जिंदाल स्टिल हैड सम आरएसआई डाइवर्जेंस, तो आरएसआई अगर होगा उसमें अंदर, तो वो हमें जनरेट करके देगा। तो लाइकवाइज जैसे ही अगर प्रो अलर्ट्स आते हैं, तो सेम बेस एक अलर्ट जनरेट होता है, और सेम बेस आपको उसी अलर्ट का गाइडेंस। सो विल चेक सम स्क्रीनशॉट्स एज वेल कि कौन से ये वीक के अलर्ट्स थे, या ये वीक में कौन से पोजिशनल अलर्ट्स दिए गए थे, वो हम एक फ्यू मिनट्स में चेक करेंगे। तो एक पार्ट होता है लाइव मार्केट का, जो बेसिकली एक्टिवली ट्रेडर है वो लाइव मार्केट में उसके स्ट्रेटेजीज चेक कर सकते हैं। तो आई वुड प्रीफर कि जो भी न्यू है, जिसने नए डेमो आईडीज बेसिकली क्रिएटेड है, तो दे कैन ओनली टेक दी प्रो अलर्ट्स, दैट वुड बी मोर देन फाइन। आपको जो गाइडेंस है वो ऑब्वियसली दिया जाएगा, एंड मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, इवन इफ यू आर नॉट देयर, जस्ट लेट मी नो on the support number so that we can connect with you on this thing, the group. तो जेन प्रो अलर्ट यहाँ पे सेम, तो सेम वेज आफ्टर मार्केट करके एक पार्ट है, तो आफ्टर मार्केट यू विल बी गेटिंग दी रिवर्सल, ब्रेकआउट, मोमेंटम, ये सब हमने स्ट्रेटेजीज डिफाइन किए हैं। तो अगर इफ यू आर थिंकिंग सीइंग कि कौन सा स्टॉक्स वर द बेस्ट फॉर रिवर्सल, तो आई जस्ट सो दिस आफ्टर मार्केट, सो all these levels which you see on TradeClue, they get updated by around 5:30 p.m. और 6 p.m. daily। तो अभी जैसे आज के अगर नेक्स्ट डे के लेवल है फॉर 30th जून, the levels will get updated as in जो daily resistance will get updated, daily support will get updated, the this thing, the boxes which you are seeing on the chart, जो buyer seller के zones है, जैसे मैंने बताया कि रेड मतलब selling zone, green मतलब buying zone, so these are the selling zones and these are the buying zones, so these will get updated on day to day basis। तो हमें एक दिन पहले ही हमें ये बॉक्सेस पता होते हैं कि कहाँ पे प्लेस्ड है कोई भी चार्ट में, बट द डॉट्स विच यू आर सीइंग की रेड डॉट्स, मतलब ये एक ओआई जनरेटेड डॉट्स है, मतलब जब भी लाइव मार्केट में देयर इज अ ओआई प्रेशर, तो अगर सेलिंग का प्रेशर है ओआई पे, ओपन इंटरेस्ट, ओआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर ओपन इंटरेस्ट, तो अगर उसमें सेलिंग प्रेशर है तो रेड डॉट्स विल बी जनरेटेड, बाइंग प्रेशर है तो ग्रीन डॉट्स विल बी जनरेटेड। बट सम गाइज हैव क्वेरी और सम पीपल हैव क्वेरी की द डॉट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे ही डॉट्स क्रिएट होते हैं, डोंट ट्राई टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन द डॉट्स। So that is my experience from last 3 years of trading on TradeClue or so, but the main agenda is कि डॉट्स जनरेट होने दो, let the price sustain, so if I'm buying, तो लेट ग्रीन डॉट्स गेट जनरेटेड, और उसके हिसाब से जब वो
प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करेगा। तो इफ आई चेक बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था कि ग्रीन डॉट्स वर स्टार्टेड जनरेटेड ओवर हियर, ओके। तो ये स्टार्टिंग में ग्रीन थे, रेड थे। इफ आई चेक 3 मिनट चार्ट, तो इंट्राडे इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्राई टू सी 3 मिनट 5 मिनट फॉर प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स। तो आपका यहाँ पे ग्रीन डॉट्स जनरेट होना चालू हो गया था, बट दीज डॉट्स वर कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि ये लाइव ओआई है। तो इफ आई एम सीइंग प्लानिंग टू बाय बैंक निफ्टी, तो इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू बाय ओवर हियर, क्योंकि देखो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, आपको थीटा डी के फेस करना होगा, अगेंस्ट होगा आपका थीटा। तो बेसिकली इफ आई एम प्लानिंग टू बाय, कि एक तो होगा कि आपका एक ग्रीन डॉट जनरेट हो गया, और प्लस उसके साथ अगर एक चार्ट पैटर्न या आपका एग्जीक्यूशन पैटर्न, डिफाइंड एग्जीक्यूशन पैटर्न, जैसे एग्जीक्यूशन पैटर्न्स हो सकते हैं डबल बॉटम, ट्राइंगल ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब पैटर्न्स अगर विद ग्रीन डॉट्स जनरेट होते हैं, और अगर ये ग्रीन डॉट्स आपके कोई लेवल है, मेजोरिटी लेवल है या ऑप्शंस लेवल है, व्हेन आई एम ट्रेडिंग बैंक निफ्टी या व्हेन आई एम ट्रेडिंग निफ्टी, आई विल सी दैट ऑप्शंस लेवल कहाँ पे। तो मैक्स पुट ओ आई बेसिकली एक बुलिश लेवल है, अगर उसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो इट इज मोर डाउनसाइड, क्योंकि these put writers will be trapped in the market. So maximum put writers का level है, एक maximum call writers का level है। If these guys are trapped on the upper side, तो ये upside में move दे सकते हैं। If these guys, but agenda क्या था कि आज market already it opened gap down below this thing. If it would have crossed and then breached this, then I would be more happier क्योंकि trade, because already the move is done. तो आप usually you will look for reversal. देखो extreme move इतना भी नहीं आया कि there is not that much of bad news कि 6-7% गिरने वाला है मार्केट। मॉर्निंग इट वाज शोइंग रेड डॉट एंड चेंज टू ग्रीन, या दैट ओनली आई एम डिस्कसिंग कि ये बेसिक एजेंडा नहीं है कि हम डायरेक्टली जाते ही बराबर हम ट्रेड करेंगे कि ग्रीन डॉट्स आ गए या रेड डॉट्स आ गए, आई एम गोइंग टू सेल। वी नीड अ प्रॉपर चार्ट पैटर्न टू बी मेड, या एटलीस्ट सस्टेन होना चाहिए स्टॉक पे। तो अगर ये मुझे एक प्रॉपर, जिसको भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है डबल बॉटम की, तो ये एक ऊपर गया स्टॉक अभी, नाउ इफ आई सी कि एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम इट वाज देयर ऑन द ग्रीन डॉट। सो व्हाट आई वांट कि ग्रीन डॉट्स तो है, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय ओवर इट। तो एक काइंड ऑफ पैटर्न बने दो और फिर बाय करो। इट्स नॉट लाइक कि इसके अंदर जैसे ही ग्रीन डॉट्स आ गए आई एम गोइंग टू, सो इट विल गिव यू इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। मार्केट 6 घंटा है, आराम से टाइम देगा आपको एग्जीक्यूशन के लिए। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे एक लाइन भी प्लॉट करोगे तो इट इज काइंड ऑफ अ नेक लाइन। तो जो हम बेसिक, तो बेसिक पैटर्न्स, बेसिक चीजें ही चलती है मार्केट में, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करोगे तो इट विल फायर बैक, क्योंकि बहुत चीजें देखना पड़ता है डेटा। तो वी आर ट्राइंग टू मेक ट्रेडिंग मोर इजियर टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स के नॉर्मल ये चेक करो, और इसी बेसिस पे गोइंग एड देयर विल बी अलर्ट्स कमिंग with along with the all these क्या future alerts, mostly for options alerts, ये सब आने वाले। but the main agenda was to how to trade these dots की dots के ऊपर, अगर green dots basically stands for buying pressure, if the price is sustaining above the green dots then I'll plan to buy, but provided that you need to have a execution pattern। अगर आप well worth हो trading technical analysis से, then only go and trade, otherwise you avoid trading because new demo IDs है कोई कोई, they are not well versed with the technical patterns, तो उससे अच्छा आप अवॉइड करो ये सब ट्रेड करना। बट द मेन एजेंडा इसकी जिनको पता है तो दे नीड टू सी कि कहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, कहाँ पे। अगर रेड डॉट्स है तो इफ आई एम सीइंग एनी ऑफ द स्टॉक्स, अभी आज रेड डॉट्स तो इसमें आए नहीं है, बट कोई स्टॉक्स में अगर बैंक निफ्टी का भी चेक करे तो काइंड ऑफ बेस वायलेशन, बट निफ्टी से बेटर वाज, बैंक निफ्टी वाज बेटर एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे क्या हो गया, एक वी शेप का रिकवरी हो गया। प्लस यू इफ यू सी कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस है, एज आई सेड कि ग्रीन बॉक्स इज अ बाइंग जोन। So green box पे either the price can sustain and then go up, or either it can trap them and give me a breakdown। तो अगर मुझे breakout trade करना है तो either I will just plot अभी देखो basically boxes I will be getting a day prior, और dots I will be getting the in the live market। तो if even if I'll check a day prior कि निफ्टी का एक ये लेवल था, so I'll just plot a line above this thing, I'll plot a line। so this was kind of a breakout level for nifty। so either chances है कि निफ्टी ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है कल सुबह। तो आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट? वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, वी हैव टू जस्ट चेक द मार्केट ओपनिंग। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि कल मार्केट क्या होगा, तो दैट इज द राइट, दैट इज द सॉरी द रॉन्ग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। सो दिस इज द मोस्ट रॉन्ग क्वेश्चन कि कल क्या होगा, बिकॉज वी आर नॉट फ्यूचर प्रिडिक्टर्स। तो एक देखना है कि हमें, कि हमने एक लेवल ये कर दिए, प्लॉट कर दिए यहाँ पे कि ये मुझे तो पता है कि ये ब्रेकआउट है, तो हमें तो नेक्स्ट डे का ओपनिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट डे ओपनिंग बेसिकली इट विल बी कमिंग अराउंड 9-8, हमें प्री ओपन समझेगा। एंड फर्स्ट 5 मिनट कैंडल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ पे ओपन होके क्लोज हो रहा है वो। तो अगर ये चीज, अगर ये क्रॉस कर देता है ऊपर के साइड पे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये लोग ट्रैप हो गए। सो दिस सेलर्स आर ट्रैप, आई एम प्रीटी मच श्योर
that I'll be buying above this so and so levels. तो this is normal trading. इसके अंदर भी एडवांस लेवल है कि हम डेटा और ये सब भी डाल सकते हैं, बट एक नॉर्मल अगर लेमेन्स टर्म में बताया जाए तो इफ आई वांट टू ट्रेड दिस इंडेक्स या इफ आई ट्रेड वांट टू ट्रेड द स्टॉक्स टू फोकस, तो सेम स्ट्रेटेजी है, रेड बॉक्स के ऊपर आपको प्लान आउट करना है ट्रेड करने के लिए. हम कुछ केसेस भी चेक करेंगे. सो बेसिकली इफ आई एम saying कि अगर if I want to trade on this thing on index or if I want to trade on stocks, same ways हमें एक दिन पहले we have to check a day prior कि कहाँ पे boxes plotted है, upcoming the latest boxes. ये वाला box will not be that important because this will be important. They are yet to breach. So I'll plan out ki trade above this thing or I'll plan out to trade below this thing. कुछ तो pattern बनेगा, Y pattern or so swing patterns, and we can plan out then. Today what happened, it has opened in this range. Okay. And then there was no swing kind of made. If it would have made a swing and then it would have gone down below this day low thing, then a follow-up selling would. But why I won't sell, because already there was a big gap down. तो already hurdles आने वाले हैं जहाँ पे भी support levels है. मैं अगर levels check करूंगा तो obviously there will be some DATR also. So exhaust move होने ही वाला था उसके नीचे. But the thing is, if I want to trade below the green box तो एक ये trade कर सकते हैं. But if it goes opposite to that, you can trade, but थोड़ा less quantity में trade करो, क्योंकि हमेशा ये फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है. तो यू कैन ट्रेड बट इन लेस क्वांटिटी. सो सेम वेज अगर स्टॉक्स टू फोकस मुझे ट्रेड करना है, अभी स्टॉक्स टू फोकस में आई हैड गिवन ग्रासिम टू बाय अबव 1360, बट लॉजिकली आप चेक करोगे कि आज ग्रासिम हैज ओपनड अराउंड 1330. नाउ देयर वर सम ऑफ देयर इज अ मोस्ट कॉमन क्वेरी कि सर अभी इधर तक आ गया है, शुड आई एंटर ग्रासिम? नाउ कीप अ कॉमन थॉट प्रोसेस कि ऑलरेडी द बायर्स आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी ओवर हियर, शुड आई एंटर? तो पहली बात तो द आंसर इज नो, यू शुड नॉट एंटर. वॉट एवर स्टॉक्स टू फोकस आर गिवन टू यू, इफ दैट प्राइस इज ओपनिंग नियर बाय, मतलब एक बोलते हैं ना ½ या मोस्टली 0.7% के रेंज में अगर वो ओपन हो रहा है दैट स्टॉक, देन दैट इज बेस्ट टू ट्रेवल. बिकॉज ऑलरेडी इफ द स्टॉक इज ट्रेवलिंग टू योर लेवल एंड देन ब्रेकिंग, तो उसका मूव सस्टेनेबल नहीं होगा. It can give a breakout further, but देखो it is not a proper way of trading because already the buyers are been taking the profit major chunk और हो गया. अगर यही चीज आज का नॉर्मल डे होता, फ्लैट ओपनिंग होती थी, तो यही मूवमेंट आपको ऊपर देखने मिल जाती थी. व्हाई? क्योंकि देयर वाज अ रेड बॉक्स, सेम स्ट्रक्चर है फॉर इंडेक्स हो या दिस थिंग. सो फॉर इंडेक्स इफ यू आर सीइंग तो रेड बॉक्स हो गया या ये हो गया प्लस ग्रीन डॉट्स हो गए, तो दिस विल हेल्प. नाउ सी देयर वाज सम ग्रीन डॉट्स हो हियर, एक बाइंग प्रेशर आ गया, एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम या कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो गया एंड इट हैज गिविंग मी अ प्रॉपर ब्रेकआउट पैटर्न एज सच. तो ये काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट पैटर्न हो जाता है, तो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो. बट इट इज ये एक लॉजिकल नहीं है क्योंकि ग्रीन बॉक्स है, सस्टेन करेगा, बाइंग जोन है, प्लस यहाँ से रिवर्सल आ गया, ग्रीन डॉट्स है, देन आई कैन गो एंड प्लान आउट माय ट्रेड्स. बट आर ब्रेकआउट लेवल एज मेंशन्ड इन दी today's this thing, so it was around 1360 to 1356 या 1360. So we can trade above that. So dotted lines is not to be enabled. ये automatically plot होगा अगर वहां पे कुछ OI का generation है. If there are OI which is generated during the live market, so dotted lines will be plotted directly. तो ये कुछ हमें plot नहीं करना है, automatically बस आपके system में आप log in करो and wait for your stocks. If you are trading on any of your stock, just wait for the dotted lines. But as I said, dotted lines आते बराबर मत trade करो. So just try to wait for some time, wait for the price pattern to be made and then try to go into your execution pattern. तो हमेशा execution pattern wait करके ही आएगा, क्योंकि आप जैसे ही dotted lines आ गए तो I am not going to jump into the trade, wait for your chance और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है. तो सेम वेज ग्रीन डॉटेड लाइंस आते हैं, उधर सस्टेन कर रहा है, अभी यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया ऊपर, तो नॉट एन इशू बिकॉज वी वर ऑलरेडी प्लानिंग अबाउट दिस थिंग. सो वी विल जस्ट अवॉइड दैट स्टॉक. व्हाई? बिकॉज अभी इफ यू वांट टू ट्रेड, स्टिल इफ यू वांट टू ट्रेड कि नहीं चलो आई थिंक दैट इट कैन गो फर्दर अप, देन लेट इट सस्टेन समटाइम्स अराउंड ईयर. मतलब सस्टेन मतलब एक रेंज बनाने दो, यहाँ पे एक रेंज बन जाएगा, फिर आप रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, तो फिर एक थोड़ा नेक्स्ट मूव, क्योंकि आफ्टर अ गुड अप मूव देयर इज ऑलवेज अ हॉल्ट. तो ये देखो अभी एक अपमूव हो गया, फिर एक हॉल्ट आ गया, अभी उसको डिसाइड करने दो कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है. फिर अगर ऊपर जाता है वाई पैटर्न बना के, देन यू ट्राई टू बाय. इफ इज गोइंग डाउन, लेट इट गो, तो उसको जाने दो नीचे, क्योंकि इधर रेड बॉक्स है. दिस गाय विल इधर डिफेंड इस पोजीशन या इधर इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो ये एक सेलर है. अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, अगर इफ आई एम सेलिंग ओवर हियर, व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस विल बी ऑब्वियसली दिस
तो अगर ये स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, अगर सेलर है तो स्टॉप लॉसेस आर बाय ऑर्डर, सो ऑल दिस बाय ऑर्डर्स विल गेट ट्रिगर्ड, तो एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग फेवर में आ जाएगी, उसके फेवर में। प्लस ग्रीन डॉट्स के, ग्रीन बॉक्स के नीचे जाता है तो इट विल बी अ follow up sell off. Sir, in Nifty, Bank Nifty, there are no red and green zones, bands like you have in stocks. Yes, bands will come only in stocks क्योंकि Nifty और Bank Nifty का एक spot chart, so it is a spot chart of Nifty Bank Nifty, and we cannot place volume. आप कोई भी टर्मिनल ले लो, कोई भी ब्रोकर टर्मिनल ले लो, यू कैनॉट प्लेस, क्योंकि वॉल्यूम बजर के स्टॉक्स विल ओनली गेट द बैंड्स, और इफ इंडेक्स पे हम वॉल्यूम डाल ही नहीं सकते, बस फ्यूचर्स पे डाल सकते। तो व्हेन वी विल इंट्रोड्यूस द फ्यूचर्स वाला चार्ट्स, माइट बी देन वी विल गेट द बैंड्स एज वेल ऑन दैट थिंग। तो दैट इज द थिंग। सो बेसिकली अगर मुझे स्टॉक्स टू फोकस प्ले आउट करना है, मेक श्योर दैट द स्टॉक ओपन्स नियर टू आवर ब्रेकआउट लेवल, इट्स नॉट लाइक, और चेक करो कि कहाँ पे रेड बॉक्स। सो द मेन एजेंडा विल बी कि आपके पास अगर ट्रेड क्लू का लॉगिन है तो यू कैन सी वेयर आर द रेड बॉक्सेस। हमेशा रेड बॉक्स होने नहीं वाले, बट सम मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी रेड बॉक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और अगर रेड बॉक्स है तो मैं जस्ट वहां पे एक लाइन मार्क कर दूंगा, and whenever it will cross my idea. But today what happened in Sun TV, the other alert which was given on stocks to focus was Sun TV also opened 400. Abhi 413 से it is going to our level near 422. तो it is already exhausted. अभी exhausted होने के बाद I said कि let it sustain somewhere around here and then let it give me a breakout. अभी इसको breakout देना है तो ये इसके ऊपर ही जाएगा, but I would not prefer, और I would trade जहाँ पे मैं usually अगर मैं समझो 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे मैं बस 20 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, just to see what happens, because these are not the days, because already gap down हो गया and buyers are already making money. That is the simple logic behind it, और कुछ नहीं। when you are trading breakout, it make sure it opens near to your breakout zone, और उधर से ही आपको, क्योंकि देखो इफ मार्केट वांट्स टू कवर अ मेजर अप मूव, ही हैज टू, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेकआउट प्राइस पॉइंट इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम बिलो, क्योंकि आपको द मेन थिंग इज दैट कि आपको ब्रेकआउट पॉइंट से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इट इज बेस्ट। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। कंसेप्ट है, एक इजी कंसेप्ट था ये रेड और ग्रीन बॉक्स का और ग्रीन और रेड डॉट्स का, जो आप इंडेक्स पे भी ट्रेड करते हो। इसके बेसिस पे हम कुछ केसेस भी देखेंगे जो ये वीक के हो गए या पास्ट वीक के, बेसिकली वी हैड केम थ्रू। तो देयर वर सम केसेस ऑफ इंडेक्स के, हम केसेस देखते हैं 23 जून को। बेसिकली there were green dots over here. Okay, now see, we had at that day we had one red box as well on the adjacent चार्ट, मतलब एक दिन पहले रेड बॉक्स था यहाँ पे, एंड प्लस देयर वर ग्रीन डॉट्स इन द जनरेशन। तो जब भी रेड बॉक्स में जैसे बताया कि वेन एवर द रेड बॉक्स विल बी ब्रीच, आई विल बी प्लानिंग टू एंटर। अभी इंडेक्स में यू कैन इधर कीप योर स्टॉप लॉसेस। नाउ मेजर इशू रहता है कि इंडेक्स में स्टॉप लॉस क्या रखे, तो इंडेक्स में इधर यू कैन कीप स्टॉप लॉस एज पर द पॉइंट्स, लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी देन 40 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ फॉर बैंक निफ्टी, मतलब 1000 रुपीज। और अगर आप स्विंग लो या स्विंग हाई से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का स्विंग लो चेक करो, या ग्रीन डॉट्स के नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो, या कोई अगर मेजर डेली सपोर्ट या डेली रेजिस्टेंस ऐसा है तो उसके मेजर ट्रेड क्लू लेवल के नीचे सपोर्ट रख लो, स्टॉप लॉस रख लो। तो यू कैन कीप दैट वे एज वेल, बट यू कैन ऑल्सो कीप स्टॉप लॉसेज एज पर पॉइंट्स की यू हैव एंटर्ड एट द मनी और यू हैव एंटर्ड इन द मनी। तो 40 पॉइंट्स इज फेयर इनफ, क्योंकि मैक्सिमम रिस्क विल बी 1000, और 1000 के सामने इवन इफ यू आर गेटिंग 1:2 1:1 1:3 जो भी है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग है तो ऑब्वियसली क्विक आपको पीएनएल दिखेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन योर दिस थिंग एज वेल, ऑन योर स्टॉप लॉसेस एज वेल। तो एजेंडा था कि ये एक ट्रेड मतलब ये बेसिकली ये चार्ट था कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स जनरेट हो गए थे, 23 जून का चार्ट है। तो सेम वेज विल चेक सम चार्ट्स की जो ये वीक में 27 जून को एक चार्ट था, बेसिकली निफ्टी ओपन गैप अप। नाउ सी अ डे प्रायर आई नो दैट देयर आर रेड बॉक्सेस एंड ग्रीन बॉक्सेस, एक रेंज बाउंड था मार्केट। देन आई विल प्लान कि रेड बॉक्स के ऊपर आई एम गोइंग टू ट्रेड और ग्रीन बॉक्स के नीचे आई एम गोइंग टू ट्रेड। द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, द price has opened directly gap up, and where it has opened near weekly resistance. So this chart was from 27th of June, like this month's 27th of June. तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया। अभी देखो यहाँ पे रेड डॉट्स क्रिएट हो गए, यार द रेड डॉट्स आर क्रिएटेड, बट आई विल वेट फॉर माई एग्जीक्यूशन पैटर्न। अगर एग्जीक्यूशन पैटर्न, अभी देखो हमेशा क्या होता है इंडेक्स में कि जब भी एक्सट्रीम गैप अप या एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट आर हाई। तो रिट्रेसमेंट हो जाता है क्योंकि गैप फिल करने के लिए इट विल ट्राई टू फिल द गैप। सो इट ओपनड ऑन द अपर साइड एंड सी देयर वर रेड डॉट्स generated now, plus there were red dots generated. Now you can see there is weekly resistance, red dots, and there is max call हुआ है। तो हमारे पास तीन लेवल्स थे, एक तो था वीकली रेजिस्टेंस,
एक था मैक्स कॉल ओआई। नाउ व्हाट इज दिस मैक्स कॉल ओआई? मैक्स कॉल ओआई मतलब मैक्सिमम कॉल राइटिंग का जोन है। तो कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो लोग बेरिश है मार्केट पे, दे हैव सोल्ड कॉल ऑप्शंस और उसके कारण दे आर बेरिश। तो मैक्सिमम वहां पे कॉल राइटर्स थे, तो वो बेसिकली वहां से बेरिशनेस आएगा या तो साइडवेज जाएगा। तो राइटिंग कर रहे हैं मतलब दे हैव थीटा डीके इन देयर फेवर बेसिकली, राइट? थीटा उनके फेवर में है। तो basically there is a maximum call writing level. So if it goes below that level, I am going to plan my trade for my sell trade basically. तो एजेंडा क्या था कि यहाँ पे खुला स्टॉक, आपका प्राइस खुला, देन इट वेंट एंड गिव मी अ वाई पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक इसको वाई पैटर्न बोलते हैं, स्विंग लो। तो स्विंग हाई के ऊपर यू कैन कीप योर एसएल और यू कैन कीप योर एसएल अबव योर डे हाई वॉट एवर, और पॉइंट्स के हिसाब से। बट द मेन एजेंडा वाज द स्टॉक ओपन, द प्राइस ओपन नियर वीकली रेजिस्टेंस मैक्स कॉल है। तो जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है आपका, देन आई विल बी प्रीटी मच श्योर फॉर गोइंग ऑन सेल, बिकॉज क्योंकि रेड डॉट्स है तो आपके पास 3 कंफर्मेशन हो गए ट्रेड्स के लिए। तो बेस्ड ऑन दीज इटसेल्फ द अलर्ट्स विल बी कमिंग। तो मॉर्निंग अलर्ट हो गया या आफ्टरनून जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स है, तो इसी काइंड ऑफ पैटर्न्स पे वी आर प्लानिंग टू गिव अलर्ट्स। बट यू कैन ऑल्सो ट्रेड मैनुअली, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन ट्रेड मैनुअली ऑन दीज थिंग्स एज वेल। कि आपको डॉट्स, डॉटेड लाइंस है, बॉक्सेस है, वन डे प्रायर यू विल डू योर एनालिसिस कि कहाँ पे बॉक्सेस है। बॉक्सेस के ऊपर आई एम गोइंग टू बाय, रेड बॉक्स के ऊपर आई एम गोइंग टू बाय, ग्रीन बॉक्स के नीचे आई एम गोइंग टू सेल। So basically below the green box I am going to sell, above the red box I am going to buy, because this is kind of a trap scenario जहाँ पे sellers trap हो रहे हैं और यहाँ पे buyers trap हो रहे हैं। So that is our plan to execute, और next day just we have to wait for the first 5 minute candle कि कहाँ पे open हो रहा है। कि so you cannot predict कि कल कहाँ पे जाने वाला है निफ्टी, क्योंकि आजकल S&P 500 हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, they are just going volatile, एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन, यही चल रहा है। तो रादर देन डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ कि कहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन होगा, ट्राई टू अवॉइड दैट क्वेश्चन फॉर टाइम बिंग। तो मेन एजेंडा रहेगा कि 9:15 को आके स्क्रीन के सामने आप चेक करो कि कहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल या कहाँ पे प्री ओपन हो रहा है। एज पर दोज लेवल्स इफ आई एम गेटिंग कि अगर वीकली रेजिस्टेंस हो गया या मैक्स कॉल ओआई हो गया, ऐसे अगर मेजर रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है एंड इट इज अ एक्सट्रीम गैप अप, तो यू कैन प्लान आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम गैप अप आर यूजुअली नॉट सस्टेनेबल ऑन इंडेक्स। अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे डेटा को, अगर जब भी ऐसे कोई गैप अप आता है तो प्रॉफिट बुकिंग फटाफट आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो गया, प्रॉफिट बना लिए और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये नीचे आ जाता है इंडेक्स। तो सेम वेज अभी एक बेसिकली द लाइव अलर्ट्स 23rd June वी सॉ ऑन निफ्टी एज वेल। तो निफ्टी का भी 23rd June काइंड ऑफ रेड बॉक्स था, यहाँ पे फिर से गया, यहाँ पे रेड डॉट्स आ गया। अभी रेड डॉट्स के बाद एक एम पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, एंड यू कैन प्लान इट फॉर ब्रेकडाउन एज वेल। सर मैक्स कॉल ओआई लाइन इज इट डायनेमिक? नहीं, मैक्स कॉल ओआई लाइन विल बी गिवन टू यू अ डे प्रायर। सो ऑल द लेवल्स लाइंस जो भी है बस डायनेमिक है आपके, जो रेड डॉटेड एंड ग्रीन डॉटेड लाइन। तो दैट डॉटेड लाइंस विल बी डायनेमिक, दैट इज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट यू विल गेट, एंड द लेवल्स विच यू विल बी गेटिंग दे आर ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो हर दिन ये मैक्स कॉल हुआ है, हर दिन ये मैक्स पुट हुआ है, चेंज होते जाएगा। तो एवरी डे आफ्टर 7 PM और 6 PM द लेवल्स विल गेट रिफ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बेसिकली। तो आज के जो भी लेवल्स है दे विल गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यू लेवल्स बाय 6-7 PM टुडे फॉर 30th of June बेसिकली। सो मैक्स कॉल हुआ है, दे विल बी फिक्स्ड फॉर द डे। तो एक दिन पहले ही आपको पता है कि रेजिस्टेंस जोन क्या है, एक दिन पहले ही आपको पता है कि ब्रेकआउट जोन्स का है क्या, कहाँ पे है, रेड बॉक्स हो या ग्रीन बॉक्स हो। बस आपको नेक्स्ट डे एग्जीक्यूशन के लिए प्लान करना है, आपके माइंड में आपको एग्जीक्यूशन पैटर्न्स आपके रेडी होने चाहिए। सो विल कम बैक टू द केसेस एज वेल कि सेम वेज अभी एक अलर्ट भी आया था। नाउ अलर्ट एज आई सेड कि लाइव मार्केट अलर्ट्स, वी आर गिविंग लाइव मार्केट अलर्ट्स एंड वी आर गिविंग स्टॉक्स टू फोकस एंड वी आर गिविंग द पोजिशनल अलर्ट्स राइट नाउ। तो सेम वेज लाइव मार्केट अलर्ट था ये एस्कॉट्स का, जो मार्केट आवर्स में हम लाइव मार्केट पे ऐसे बेसिस पे हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे अलर्ट का सेल रेंज है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो सेम वेज यू विल बी गेटिंग दी अलर्ट्स कि कहाँ पे आपको एंट्री प्राइस है। तो बेसिकली जो भी जो दोज गाइज हु डोंट नो हाउ टू रीड द चार्ट्स, या आपको जितना टेक्निकल एनालिसिस का लॉजिक नहीं, बस आपको अलर्ट्स पे ध्यान देना है, तो दैट वुड बी ऑल्सो मोर देन फाइन, क्योंकि इसका भी एक्यूरेसी रेशियो एनी अलर्ट्स और एनी काइंड ऑफ लेवल्स का, ग्रीन डॉटेड्स का एक्यूरेसी इट इज अराउंड 70 to 75%। इफ यू वांट टू चेक द बैक टेस्टेड डेटा, मतलब
क्या बेसिकली रिजल्ट्स रहा है, तो यू कैन क्लिक ऑन द bulb icon placed over here. You can see the performance sheet as well as you can see certain examples as well कि कैसे stocks to focus trade कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किए कि रेड डॉट्स हो गए या ब्रेकआउट के ट्रेड्स। तो एक पास्ट एग्जांपल्स है जहाँ पे आपको रीजंस के साथ मेंशन किया गया है कि कैसे ये पास्टली परफॉर्म किए हैं, और ऑब्वियसली ये अप मूव्स हो गए इतने बड़े क्योंकि द सेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड बेसिकली। So I guess I'll just zoom a bit. तो why these up moves are happening? Because the sellers are getting trapped or the buyers are getting trapped. तो इसलिए ये down moves। अभी ये green box यहाँ पे break down हो गया। I'm going to trade on that. Why? Because this guy is getting trapped. तो I'm pretty much sure कि break down आने वाला है इसके अंदर। तो that is the thing. And plus अगर आपको ये month के examples check करने हैं तो you can check it on our Twitter handle। यहाँ पे आपको ऑन डे टू डे बेसिस पे आपको जो स्क्रीनशॉट है आफ्टर मार्केट बेसिस पे। सो द पोजिशनल अलर्ट्स विच वी विल बी गिविंग टू यू गाइज विल बी इन दिस फॉर्मेट की जहाँ पे आपको अलर्ट आएगा। तो ये एक अलर्ट दिया था अनूप करके, ये बेसिकली दिस वीक ही था। तो इट वाज अ बाय अराउंड 683 एंड सेम वे स्टॉप लॉस वाज अराउंड 659। तो एक अराउंड 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। एंड सेम वेज आपको टारगेट दिया जाएगा कि टारगेट 1 क्या है, 2 क्या है। नाउ इफ दोज हु आर स्टिल इनटू द ट्रेड, आई थिंक दैट अनूप कैन गो टुवर्ड्स 750 to 780. It has good potential to go towards that thing. Sir, when will rest of the topics will be covered in our intraday course? That will be from tomorrow. This was a weekly webinar session. That's why you guys from tomorrow will be checking the other aftermarket in detail. So basically ये kind of एक premium इसके अंदर हम positional alerts का structure ये देते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री है। सो दीज आर फॉर दोज बेसिकली दे आर नॉट इनटू एक्टिवली इनटू मार्केट, जस्ट आपको ट्रैक रखना है पोजिशनल अलर्ट्स का। तो दैट गाइज विल इट विल हेल्प आउट दोज गाइज बेसिकली कि जिनको डायरेक्टली ट्रेड करना है, नॉट दे आर नॉट एक्टिवली इनटू द लाइव मार्केट, सो दे कैन ट्रैक आवर पोजिशनल अलर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ सेकंड अलर्ट व्हिच वाज गिवन। बिफोर दैट इन द लास्ट वीक वी डिस्कस्ड सिंजिन अलर्ट व्हिच वाज गिवन टू यू गाइज। तो सिंजिन का अगर मैं चेक करूंगा तो इट वाज सेम वेज कि कहाँ पे आपको एंटर करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहना है। तो इन दिस फॉर्मेट द अलर्ट्स विल बी गिवन ऑन टू द ग्रुप। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, जस्ट take the demo and get to be a part of this group or the demo group. So we have a similar demo group for our demo clients wherein you'll be there for 2 weeks time period basically. So you can go through it. Plus I hope you guys are clear with the stocks to focus thing, क्योंकि stocks to focus majorly breakout trades में आपको pretty much simple है, simple रखना है, red box हो या green box हो। सेम वेज आपको अगर आफ्टर मार्केट पे चेक करना है, रिवर्सल हो गया तो रिवर्सल के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक्स है, वी आर गिविंग अ डे प्रायर इटसेल्फ कि स्कैनर से मिल रहा है कि दीज मेनी स्टॉक्स आर गुड फॉर रिवर्सल। नाउ इफ आई वांट टू प्लान फॉर रिवर्सल, आई विल चेक कि कौन सा स्टॉक आपका ग्रीन बैंड पे सस्टेन हो रहा है। तो देर आर सम ग्रीन बैंड्स एंड रेड बैंड्स, जैसे आपको बताया कि अगर अदानी पोर्ट्स, अगर आज का अदानी पोर्ट्स एक्चुअली वाज द बेस्ट थिंग, सो वी हैड ट्रेडेड दिस एज वेल। तो अगर अदानी पोर्ट्स देयर इज अ कंटिन्यूअस फॉल, तो एक चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई इन दिस स्टॉक्स। तो फ्रॉम वेयर दिस गाइज विल रिवर्स, तो इट विल रिवर्स फ्रॉम द ग्रीन बैंड जोन। एक अदानी पोर्ट्स और एक कोटक बैंक, these are good stocks for reversal for today actually. Now Kotak Bank is almost about to start its reversal क्योंकि already it is sustaining on the green band. So even if you want to trade on this Kotak Bank, you can keep your stop loss below the green band, you can trade at this level. Agenda is कि आपका 4 रुपए का ही यहाँ पे stop loss है। Even if it moves 4 rupees, 5 rupees or 6 rupees, you are pretty much good on your risk reward. So this will help you out in the reversals trading structure as such. What intraday course is starting? No, we have a intraday course running parallel actually. So those students are also connected on this thing. So in that intraday course, actually we teach about the more into detail, like how these strategies are been planned out or what is the execution pattern. तो kind of a detailed में जाता है कि उसके अंदर obviously those are the paid courses. तो ये basically उसके अंदर आपको कैसे ट्रेड ले सकते हैं या क्या execution pattern है, we'll be discussing on that structure. For price sustain above green dot or below red dot, normally how many 3-minute candle we need? At least how minute, मतलब देखो प्राइस सस्टेन कितना टाइम कर सकता है, तो एटलीस्ट 20 minutes to 30 minutes। तो उस हिसाब से 10
10 3 मिनट के कैंडल्स हो सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं गिनते बैठूंगा कि 10 11 कैंडल आ गया, आई एम गोइंग टू बाय। इट्स नॉट दैट थिंग। आपको एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा उसके ऊपर, कि जैसे अभी आई सेड कि एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम है, काइंड ऑफ डबल बॉटम ही है, तो एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, क्लियर कट डबल बॉटम है, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ सस्टेनिंग ऑफ 20 to 25 मिनट्स इसके ऊपर। तो एक आपको क्लियर कट, और उसके बाद वो रेंज ब्रेक करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक शो किया लास्ट ये वीक का एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, कि निफ्टी बैंक, दिस वाज द 27 जून का एग्जांपल, निफ्टी बैंक स्टार्टेड, इट ओपनड एट वीकली रेजिस्टेंस एंड मैक्स कॉल हुआ है, तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन ही है। अभी मंथली सपोर्ट है, तो ये मंथ का देखो, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी, वेयर सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। तो ये बेसिकली उसी हिसाब से कि यहाँ पे मंथली सपोर्ट भी था, वीकली रेजिस्टेंस, डीएटीआर तो नो डाउट ऊपर है, बट देयर वाज रेट, तो मतलब उसके अंदर ओआई प्रेशर भी है, मैक्स कॉल हुआ है, मतलब ये सब है। तो जब लेवल्स है, तो आई हैव टू जस्ट वेट कि कहाँ पे उधर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक साइडवेज हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 into 5 35, समवेयर अराउंड 30 मिनट्स का राउंड वहां पे सस्टेनिंग हो गया था। तो मतलब इट इज हॉल्टिंग, देखो मार्केट वोंट हॉल्ट फॉर मच टाइम, तो इट विल इधर मूव इन सम और द अदर डायरेक्शन। तो एक बार हॉल्ट हो गया, तो बस वेट करो कहाँ पे ब्रेकआउट होगा आपके जोन में, सेलिंग जोन में, तो ट्राई टू प्लान आउट फॉर अ सेल ट्रेड। So that is the thing. And if you guys, those guys who are not well versed with the markets, I will definitely tell you कि आप rather than directly जो WhatsApp के ऊपर जो alerts आते हैं, in this manner we are giving these alerts, kind of your entry SL, तो intraday alerts ही हो गए ये सब। तो आपको एंट्री हो गया, बाय अबव, सेल बिलो, बेसिकली उसका स्टॉप लॉस दिया जाएगा, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वी डोंट हैव टू बी इनटू द ट्रेड फॉर इफ इट इज गोइंग साइडवेज, तो कहाँ पे आपको पार्शियली एग्जिट करना है या कहाँ पे आपको ये सब करना है, तो वो सब प्रॉपर गाइडेंस आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। सो दोज गाइज आर नॉट वेल वर्स विद द टेक्निकल एनालिसिस, ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट ऑन द ग्रुप्स एज वेल, उसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइडेंस। एंड दोज गाइज हु आर not actively into the market, and they can directly take the positional alerts या stocks to focus से भी breakout trade कर सकते हैं। It is possible through mobile apps as well, आप खुद के ब्रोकर अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड फॉर दोज हु आर एक्टिवली इनटू द मार्केट, स्क्रीन के सामने होते हैं, दे हैव अ गुड अपर हैंड ऑन दिस, व्हाई, बिकॉज दे नो द लेवल्स ऑफ द मार्केट, दे नो व्हाट इज वीकली रेजिस्टेंस, ये सब कहाँ पे मैक्स पुट हुआ है कहाँ पे, दे आर सीइंग द ग्रीन डॉट, सो दे हैव मोर कन्विक्शन। ऑब्वियसली द एक्यूरेसी विल improve if you know each and every feature, at least you know what that feature stands for, तो obviously your accuracy will improve on that case। और accuracy front के ऊपर देखा जाए तो this is kind of a पास्ट क्वार्टरली जो एक्यूरेसी था और प्लस मंथली एक्यूरेसी, नो डाउट यहाँ पे मई मंथ में देयर वर काइंड ऑफ गुड मूव्स व्हिच वर हैपनिंग, तो 85% मूव था, बट आई वुड सजेस्ट कि 70 to 75% के बीच में the alerts. So these are the live market alerts which are given on the WhatsApp group. These are not the this thing, but we will also add one more column as positional alerts, क्योंकि positional भी अभी हमने start किए, तो उसकी भी एक accuracy एक अलग से we will try to provide you guys as well, तो वो एक clear cut। And if you want to check the past queries, ये सब past कैसे performance charts basically, तो उसके ऊपर सारे reasoning दिए जाते हैं क्यों क्या है, तो ये बेसिकली आपको अगर चेक करोगे तो इट इज ओवर एंड ओवर द सेम रीजनिंग विच वी आर गिविंग ऑन एनी काइंड ऑफ चार्ट। सो दैट इज द थिंग कि आप अगर सेटअप्स एक ही जैसे रखोगे तो इट विल बी अ मोर easier way to trade. So the main agenda of TradeClue will be to kind of make your improvise your trading and try to simplify your trading. That is the main thing. तो एक सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडर है तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल to understand as well. You can keep a follow up that. In HCL Tech, there is green box in place of red. How to analyze that, HCL Tech? Okay, now see, अभी HCL Tech, if I want to analyze, पहली बात तो एक दिन पहले I will be getting, one day prior I will be getting the boxes. I'll just hide this. Now since you had this HCL Tech on your radar, so I'll just mark now रेड बॉक्स। देखो हर टाइम रेड बॉक्स होगा नहीं, अगर उधर सेलर ही नहीं है मेजर सेलर तो वहाँ पे रेड बॉक्स होगा नहीं, उधर मेजर बायर है तो ही बॉक्सेस ग्रीन बॉक्स आने वाले। तो आई नो कि दिस इज वन जोन 983.2। Now, if I want to trade, I will either trade if a green candle on 5 minute, a red candle on 5 minute time frame crosses and gives a breakdown. तो ये प्लान आउट होगा मेरा यहाँ पे
एंट्री होगा, यहाँ पे मेरा एसएल होगा. सो दिस इज माय प्लान. अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे कहाँ पे स्टॉक खुला, यहाँ पे खुल गया, अभी ये पैटर्न बनाया क्या नहीं बनाया, तो आई विल वॉन्ट बी ट्रेडिंग. इफ इट इज क्रॉसिंग दिस लेवल and if there are red dots in the making, then it is the best case scenario. I'll show you some cases of stocks to focus where you will be more pretty much sure. तो ये वीक के ही है, यही pretty much है. अभी यहाँ पे रेड बॉक्स है, ठीक है. ये एक दिन प्रायर ही हमें पता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है, कि ये स्टॉक सारे हमने इस पे ही दिए थे, अलर्ट्स पे दिए थे स्टॉक्स टू फोकस में. तो दिस गिव मी अ ब्रेकआउट अलोंग विद द ग्रीन डॉट्स. तो बाइंग प्रेशर भी है स्टॉक में, ग्रीन डॉट्स है, रेड बॉक्स है, इट क्रॉस्ड एंड इट हैज straight away gone on the upside. Why? Because एक जैसे मैंने बताया कि ये sellers अगर these guys are taken out from the system, a follow up buying will be more likely to happen. Same ways यहाँ पे देखो रेड बॉक्स है, सेम वेज ये अभी ये क्या हो गया, ये ड्रास्टिक मूव हो गया. अभी इधर यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बिलो या स्विंग पे रख दो स्टॉप लॉस, नॉट एन इशू. कि तो आपका पोजीशन साइजिंग बस आपको ये करना होगा, प्रॉपरली प्लेस करना होगा. अभी सेम वेज ग्रीन बॉक्स है, ब्रीज डाउन हो गया यहाँ पे. इफ यू आर एंटरिंग ओवर हियर, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस इधर एट द स्विंग हाई. स्विंग हाई अगर लंबा होगा तो इधर यू कैन कीप दिस बिग वाला रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस इज अ बिग रेड कैंडल. तो आप एक मोरिबोसो कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो. तो दिस इज द ग्रीन बॉक्स का स्ट्रक्चर्स. Plus now this biocon was there which had adjacent two red boxes यहाँ पे. The next day what happens, as I said कि breakout का सबसे best breakout कब काम करेंगे ये stocks, when the stock is opening near to our breakout zone. तो अभी देखो यहाँ पे near to the red box का zone directly आ गया. सेम वेज एक रिवर्सल पैटर्न बने. अभी रिवर्सल पैटर्न इट कैन बी इधर ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट. सो टाइम फ्रेम्स आर एडजस्टेबल. तो अगर ये ऐसा स्विंग पैटर्न बन गया, यू कैन टेक योर एंट्री एंड योर कीप योर स्टॉप लॉस एट डे लो या जो भी स्विंग लो बनाया हुआ है वो. तो सेम वेज यू कैन ट्रेड. अभी देखो यहाँ पे गेल करके रेड बॉक्स था, यहाँ पे ब्रीच किया, काइंड ऑफ न्यू एंट्री किया, आपका ये स्विंग लो हो गया स्टॉप लॉस and follow up. Such a big move has happened. So this had come on 31st of May. तो May month had given us good kind of alerts. तो इसलिए वो accuracy 85% भी था, alerts भी बहुत अच्छे चल गए थे. जून मंथ में देखो ये HCL टेक का एक अलर्ट था. तो दिस वाज रेड बॉक्स, स्विंग यहाँ पे ब्रेक कर दिया, स्विंग लो बन गया आपका and follow up. So this was on 5 minute time frame. So this is the structure which we are planning to trade on stocks to focus. So you can keep a track on this. I hope your answer question is clear कि आपको कैसे ग्रीन बॉक्स या रेड बॉक्स पे ये करना है. सो वी आर डन विथ एक्चुअली टुडेज सेशन. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक फॉर 2 minutes, then we'll sign off for today. Today in Grasim I have enter at 1348 and exit at 1352, but goes to 1358, 1360. How to identify when to exit? First of all, if you are trading, the main agenda will be your execution. Exits will matter. If I'm सीइंग, अगर मेरे सामने अगर 10 ट्रेडर हो तो सबके एंट्री सेम होने चाहिए, बट एग्जिट्स ऑब्वियसली इट विल मैटर. बट अगर एग्जिट्स भी आपको देखना है, हाउ टू प्लान योर एग्जिट्स, तो एग्जिट्स यू कैन योर लेवल्स विल हेल्प यू आउट इन एग्जिट्स. देखो अभी मैंने सारे लेवल्स लगा दिए. तो अपकमिंग लेवल क्या था, मैक्सिमम कॉल हुआ है. एज आई सेड कि मैक्स कॉल हुआ है मतलब क्या, कि वहां पे कॉल राइटर्स है, मैक्सिमम कॉल राइटर्स है. दे आर थिंकिंग द प्राइस विल गो डाउन फ्रॉम दिस वन, एंड सी आफ्टर दैट अप मूव द प्राइस एक्चुअली रिवर्स फ्रॉम मैक्स कॉल हुआ है. क्योंकि देखो कॉल राइटर्स है, दे आर नॉट ट्रेडिंग ऑन 1 or 2 लॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, दे आर ट्रेडिंग ऑन मेनी लॉट्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव गुड अमाउंट ऑफ फंड्स और एक बड़े प्लेयर्स है मार्केट में. तो दैट्स व्हाई द रिट्रेसमेंट केम फ्रॉम दैट इटसेल्फ. एंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 1348, 52, नो डाउट ये बहुत ही स्मॉल मूव हो गया, चार पॉइंट्स का. बट try to trade when don't try to trade when this extreme move has happened. As I said कि breakouts will happen maximum. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक शो किया था, सारे भी आप breakouts देखो जो चले हैं इतने बड़े, they have started from the red box itself and not they have traveled long way. मतलब ये ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहा है और बाद में ब्रेकआउट दे रहा है, तो इट हैज एग्जॉस्टेड इट्स अप मूव. तो बेसिकली एग्जिट्स आपको प्लान करने, यू कैन चेक द ट्रेड क्लू लेवल्स, अपकमिंग लेवल्स है तो वो आपके एग्जिट्स हो सकते हैं. या रिस्क रिवॉर्ड के सिनेरियो, इफ यू आर गेटिंग 1:1, 1:2, आप ट्रेल करो आपका एसएल एंट्री प्राइस पे एंड ट्राई टू बुक सम क्वांटिटी, दैट विल हेल्प यू आउट. आईसीआईसीआई प्रू yesterday bought at 482 about 1209 which was in volume buzzer 15 minutes. आई प्रू तो आज गैप डाउन खुला होगा ये. ओके, सो दिस वाज इन वॉल्यूम बजर. अभी देखो यहाँ पे 482. यस भास्कर जी, योर ट्रेड वाज वेरी मच राइट, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ पैटर्न है. क्योंकि देखो ये दिस वाज अ फॉल,
then it starts sustaining above. अभी मुझे levels नहीं पता कल के levels क्या थे इस पे, but this is a kind of a breakout pattern ही है ये, जो एक fall के बाद काइंड ऑफ आई गेस वी हैड सीन इन वन ऑफ द स्टॉक। और जब भी ये एक रेंज ब्रेक हो जाता है तो आप इस स्टॉप लॉस के नीचे, इस स्विंग के नीचे यू कैन कीप द स्टॉप लॉस और यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन आईप्रो, कल तो ये ऊपर गया, अभी ऊपर जाने के बाद 10 पॉइंट्स गया 492, नो डाउट। नाउ इट हैज मेड अ गुड अमाउंट ऑफ रेंज। नाउ लेट दिस स्टॉक रिमेन साइडवेज फॉर कपल ऑफ डेज। अगर ये और नीचे नीचे आता है या फिर से अगर आता है तो ये एक रेंज बन जाएगा आपका, और फिर बाद में ब्रेकआउट के लिए यू कैन प्लान। बट दिस इज अ 500 जोन, तो ये फर्स्ट एक रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा। या वंस अगेन इफ इट कम्स, नाउ सपोज ऑन आईसीआईसीआई प्रो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो देयर आर सम लेवल्स कि यहाँ पे अगर वीकली सपोर्ट आ जाता है या मैक्स पुट ओआई आ जाता है, एंड इफ द स्टार्ट स्टॉक कम्स डाउन अगेन एंड देन मेक्स अ डब्ल्यू पैटर्न, then you can again plan for a buy trade. So these volume buzzers you can play it every time whenever it comes to the green band zone or so, if it is making your pattern. Sure, then we'll sign off for today and we'll connect for the weekly webinar for the next week as well, for the new demo IDs which will be added, and plus the new clients which are added to our terminal. If you guys don't, if you guys have not taken the demo, just let us know. We will be posting the link in the blogs as well, in the groups as well. You can connect on that and you can get. And those guys who are not added to the WhatsApp group, you can let us know in the demo WhatsApp group. It is validity of 2 weeks, you can be added on to that. Okay, then we'll sign off for today. Thanks.